Yes, solve this question. Identify the OA and RA in the following reaction. फिर H2SO4 OA हो गया। चेक करो हर एक को ऑक्सीडेशन स्टेट करो और फिर बताओ। फिर DaO2 से O2 निकाल रहे थे, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि रिड्यूस हो नहीं नहीं ऐसा मत करो और डोंट डू दैट, ऑलवेज गो बाय ऑक्सीडेशन स्टेट्स। 11th एंड 12th में सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट्स को ही लिखना है, बाकी किसी चीज को नहीं। So what is the answer? Yes, what are the oxidation states of barium on left hand side and right hand side? तो लेफ्ट हैंड साइड में +4 है। Go by the sequence. Barium, it's in group 2 of periodic table. It cannot Yes. show anything except +2. +2 होगा। So +2 because barium is in group 2. Group 1 and group 2 do not show variable oxidation states. देखो मैंने लिखवाया था रूल्स में कि सिर्फ ग्रुप 2 का +2 ही होता है, ग्रुप 1 का सिर्फ +1 ही होता है। ओके नेक्स्ट उसके हिसाब से ऑक्सीजन का निकल जाएगा, फिर -1 हो जाएगा। हाँ जी। एंड सिमिलरली सल्फर का +6 एंड हाइड्रोजन का तो हमेशा +1 रहता है, क्योंकि हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन का +1 होता है। सो दीज आर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। H2SO4 का हर बार स्ट्रक्चर बना के ही निकालना पड़ेगा। नो 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 नॉट रिक्वायर्ड। H2SO4 का विदाउट स्ट्रक्चर आल्सो यू कैन फाइंड आउट। जैसे H का +1 और O का -2 डालोगे और सल्फर का X मानोगे तो हो जाएगा ना X+6। ओके सर। स्ट्रक्चर सिर्फ उन्हीं के ड्रॉ करने हैं जो मैंने ड्रॉ किए थे, जितने मैंने ड्रॉ करके दिए थे उतने ही करो, मोर देन सफिशिएंट, बाकी के लिए नहीं। Now we can see clearly that this is not a redox reaction because oxidation states are same of each element on both sides of the reaction, and hence कोई OA या RA exist नहीं करते हैं इस केस में। So remember this, हमेशा आपको ये करना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स पहले निकाल के ही देखना है कि क्या हो रहा है रिएक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको आगे नेक्स्ट चैप्टर में काम आएगा। H2O2 can act as OA also and it can act as RA also. So ये एक important बात है। अगर वो OA भी है और RA भी है तो क्या होगा? ऐसा होगा, when it is acting as RA then it gets converted to oxygen gas, and when it acts as an OA it gets converted to water. So again you will have to keep this in mind. RA matlab the species will get oxidized, and so you can see that the oxidation state has increased from -1 to 0. -1 to 0 matlab increase in oxidation state.
So we can say that H2O2 is acting as an Ra. When H2O2 is acting as an OA, that time it should get reduced, and so the oxidation state has decreased from -1 to -2. So ये पता होना चाहिए कि क्या होता है जब H2O2 Ra होता है और क्या होता है जब H2O2 OA होता है. Next, write stop notations for the following compounds. अब stop notations क्या होते हैं? Stop notations का मतलब होता है we need to find out the oxidation state of the metal ion. Okay. And then write the oxidation state of the metal within round brackets, taking care of the fact that the oxidation state written must be in the Roman numeral form. So in the first example, or in the first part of the question, what is the oxidation state of copper? +2. 2. Yes, +2 because Cl is -1. Okay. And because it's +2, I'm supposed to write the oxidation state of copper within round brackets in the Roman numeral form. So this is what I'll write. So this is called stock notation of CuCl2. Likewise, if I look at AuCl3, the oxidation state of Au is +3. And so I write 3 in the Roman numeral form within round brackets. So these are called stock notations. And while writing stock notations, we are not supposed to write the oxidation states of the nonmetals. We are supposed to write oxidation states only and only of the metals. तो स्टॉक नोटेशन सिर्फ मेटल्स के लिए ही यूज किए जाते हैं. Yes, write down this. ऐसे किसी भी कंपाउंड जहां पे मेटल इन्वॉल्व हो हम लोग स्टॉक नोटेशंस लिख सकते हैं.
Okay, next question. Give some examples of intramolecular redox reactions. Intramolecular means within the same molecule. So let's look at some examples. First example, if you look at the molecule is a single molecule, that is KClO3. It is a single molecule, and in KClO3 you have two different atoms. One atom has an oxidation state of +5, which is chlorine, and the other atom has an oxidation state of -2, which is oxygen. The oxidation state of chlorine has decreased from +5 to -1, and the oxidation state of oxygen has increased from -2 to 0. Hence, I say that KClO3 has different atoms getting oxidized and reduced. That is why this reaction is an example of intramolecular redox reaction. So chlorine has undergone a change in oxidation state from +5 to -1. That's a decrease mathematically. And so I say that it's a part of reduction. It's representing reduction. And the oxidation state of oxygen has increased from -2 to 0. Increase is oxidation. So I'll say that this change in oxidation state of oxygen represents oxidation. Since chlorine as well as oxygen both are present within the same molecule, I will say that this is an example of intramolecular redox reaction. Second example, PCl5 is a single molecule. It has two different oxidation states. Phosphorus is showing +5 and chlorine is showing -1. Phosphorus is showing a decrease in oxidation state and chlorine is showing an increase in oxidation state. That is why this is again an example of intramolecular redox reaction. Both phosphorus as well as chlorine are present in the same molecule before the reaction. Write down. सर ये हमेशा एक डिसोसिएशन रिएक्शन के फॉर्म में होता है. Usually it is not. Dissociation के फॉर्म में होने का चांस ज्यादा है. Third example, there are two different oxidation states of nitrogen, and hence I say that there are two different types of nitrogen atoms. So these two are different atoms existing within the same molecule. One oxidation state is -3 and the other oxidation state is +3. From -3, the oxidation state changes to 0. -3 to 0 is a mathematical increase representing oxidation. +3 to 0 is a mathematical decrease representing reduction. And so I say that this is again an example of intramolecular redox reaction because both the nitrogen atoms were present within the same molecule before the reaction. Same holds true for the next example. There are two different types of atoms within the same molecule. सर इसका हम लोग तो अगर नहीं पता तो हम ढूंढे तो. हाँ. सर हमने H4 के लिए +1 डाल दिया और 3 के लिए -2 डाल दिया.
हम दोनों n के लिए x और y डालेंगे, दो इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है। नहीं, बट ये आयनिक बॉन्ड है ना, कोवैलेंट थोड़ी है, तो इसको स्प्लिट करना पड़ेगा पहले। NH4 NO3 माइनस, दिस इज अ कैटायन, दिस इज द एनायन। ओके सर, अब अलग अलग डील करना पड़ेगा। अब हाँ इसको सर अलग समझा। लोगे, इसको अलग लोगे। हमेशा याद रखो आयनिक कंपाउंड में ना यू हैव टू स्प्लिट कैटायन एंड एनायन। All right, next question. थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? हो गया। What is the equivalent weight of NH4NO3 in the following reaction? Molar mass of NH4NO3 is m. That means in terms of m, we are supposed to write the equivalent weight. Now this is nothing but the fourth example given here. Now, in case of an intramolecular redox reaction, the N factor is calculated by looking at any one part. Either you can look at the oxidation part or you can look at the reduction part. Any one. Both will give you the same answer. So if I look at the oxidation part here, then it will be -3 changing to +1, which is oxidation. And the N factor with respect to that will be 1 minus -3. That is 4. So N factor is 4. If I want to consider the reduction part, then the NF will be equal to 1 minus 5 into 1. Again, that is equal to 4. So N factor is 4. And hence the equivalent weight will be m upon N factor, which is m upon 4. इससे थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो? Okay, done? Yes, sir. Finish it. Okay, done? Till here.
क्या तक हो गया? हाँ सर। ओके ओके so the next part is balancing redox reactions. अब इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो पता होने चाहिए. विदाउट स्टेप्स वी कैन नॉट डू. सीक्वेंशियली स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है. There are two different methods of balancing redox reactions. So I'll teach you both the methods. First method is ion electron method. Ion electron method. So under that there are two different categories. One is acidic medium and one is basic medium. So when I'm using ion electron method, I can use it for acidic medium and also I can use it for basic medium. And there are steps which are to be followed. So I recommend that you start writing the steps. So start writing the steps. Once you're done with the steps, I'll explain. Please write fast. We'll have to do questions also. Because सिर्फ लिखने से steps मतलब नहीं है ना, unless you do the questions. अभी बस copy कर लो इन steps को, and then I'll explain the questions. यहाँ तक हो गया? हाँ सर. Okay. तो थर्ड स्टेप दिखा सकते हो गया सर.
सर एक बार फोर्थ पॉइंट दिखा सकते हो? हाँ सर। Okay, done till here. यस सर। Okay. Now for basic medium.
Start writing for basic medium. फिर वो डिफिसिट ऑक्सीजन हाँ फिर H2 उधर नहीं ऐड करेंगे जहाँ पे डिफिसिट ऑक्सीजन एक्सेस है ना यहाँ पे, वो उसमें था एसिडिक मीडियम में अलग था, बेसिक मीडियम में अलग है इस टाइम।
Done till here? Done? You need to see any particular step, then tell me. Accordingly, I'll scroll up. ये था एसिडिक मीडियम का. All right, let's start with the questions. So we have completed the steps for ion electron method. उसके पहले ये भी एक चीज पता होनी चाहिए. ये जो नोट लिखा है, रिक्वायर्ड नंबर का मतलब क्या है? रिक्वायर्ड नंबर का मतलब है जितने से वो डेफिशिएंट है. अगर मैं बोलूं रिक्वायर्ड नंबर मतलब कितने से वो डेफिशिएंट है. So this required number phrase means the number of atoms by which a particular species is deficient. अगर मैं बोलूं कि बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो रिक्वायर्ड नंबर का मतलब क्या होगा? जितने से ऑक्सीजन डेफिशिएंट है उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स डालने हैं. So let's start with the question. Now question पहला है जो आसान है, तो मैं बता देता हूँ. Balance the following reaction using ion electron method. Reaction देके रखा है आपको. Now remember, ion electron method में when we start with oxidation half and reduction half, we are supposed to ignore H plus ions, OH minus ions and H2O which are present in the original reaction. I repeat, if the original reaction has H plus, OH minus or H2O, then we are supposed to ignore the species while writing oxidation half and reduction half reactions. So we will not focus on H plus, OH minus and H2O while we are writing the oxidation half and reduction half. तीनों के लिए ही, ठीक है? तो तीनों को ही हम लोग इग्नोर करेंगे, तो नहीं लिखने वाले हैं तीनों को when we are writing the oxidation half and reduction half reactions. So remember this thing, which means equation में H plus और H2O को हम लोग सीधा सीधा हटा देते हैं और बाकी चीजों को देखेंगे सिर्फ. Now identify the oxidation half and identify the reduction half. So if you notice carefully, +2 से +3 हो रहा है Fe का oxidation state, which is increase mathematically. That means Fe2 plus is getting oxidized, and so the oxidation half will be Fe2 plus giving Fe3 plus. And the reduction half will be Cr2O72 minus giving Cr3 plus.
तो ये पता चल गया कि ऑक्सीडेशन हाफ कौन है और रिडक्शन हाफ कौन है। नेक्स्ट, मीडियम कौन सा है, एसिडिक है या बेसिक है, वो पता करना है। तो वो क्वेश्चन में दिया रहता है, क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो उस केस में रिएक्शन के अंदर देखना है। बेसिक है। अब देखो रिएक्शन को ध्यान से देखो तो यहाँ पे H+ दिख रहा है, so that is an indication or it's a hint given to the students. H+ stands for acid, इसका मतलब मीडियम एसिडिक है, so this indicates that the medium is acidic. अगर OH- होता तो बोलते मीडियम बेसिक है, फिर वो अगर RHS में होता तभी भी तो भी वो इंडिकेशन है कि अगर H+ है या OH- है, चाहे वो LHS हो या RHS हो। नेक्स्ट, नाउ यू कैन स्टार्ट विद द स्टेप्स, जो स्टेप्स लिखवाए थे मैंने। अब बताओ पहला स्टेप क्या है, राइट द ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। ठीक है, राइट द ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। तो ये आपका हो गया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, बैलेंस एटम्स एक्सेप्ट दोज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो Fe एंड क्रोमियम को बैलेंस करना है इसका मतलब। Fe तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, क्रोमियम बैलेंस्ड नहीं था, तो इसके लिए क्रोमियम के यहाँ पे 2 डाल दिया, तो अभी क्रोमियम भी बैलेंस हो गया, तो स्टेप 2 खत्म हो गया। स्टेप 3, स्टेप 3 को पढ़ो, बैलेंस एटम्स ऑफ ऑक्सीजन by adding required number of water molecules to the side deficient in oxygen. required number मतलब कितने से deficient है, यहाँ पे तो कुछ पर ऑक्सीजन कुछ का नहीं है है, ही, नीचे 7H2। तो यहाँ पे भूल जाओ, because there is no oxygen in the first half. In the second half, that is reaction half, we have 7 oxygen atoms on the left hand side of the reaction. We do not have any oxygen atom on the right hand side of the reaction, which means that the right hand side of the reaction is deficient in oxygen atoms. And by how many oxygen atoms is the RHS of this half reaction deficient? 7 oxygen atoms. Hence, I'm supposed to add 7 H2O molecules on this side. Next, balance hydrogen atoms by adding required number of H+ ions to the side deficient in hydrogen. यहाँ पे वापस कोई हाइड्रोजन नहीं है, so forget that. In the reduction half, we have 14 hydrogen atoms on the right hand side of the reaction. So right hand side में अगर 14 है तो इस तरफ मुझे deficient side पे 14 H+ ऐड करने हैं। ये हो गए हाइड्रोजन एटम बैलेंस। नेक्स्ट, balance charges by adding required number of electrons. तो क्या, इस तरफ देखो, यहाँ पे +3, यहाँ पे +2, चार्ज यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है। If I add 1 electron this side, तो ये +3 -1 हो जाएगा, which is +2, हो गया चार्ज बैलेंस दोनों तरफ। Because 1 electron means -1, 2 electrons will mean -2, and so on. तो हो गया ये बैलेंस। How many electrons should I add this side on the left hand side in reduction half? यहाँ पे -2 चार्ज है, 14 into +1 is +14, which means -2 + 14 मिला के हो गया आपका +12। इस तरफ चार्ज है +12 और इस तरफ चार्ज है आपका +6, because 2 into +3 is +6। तो क्या करना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स को लेफ्ट में ऐड करना पड़ेगा। हाँ, तो लेफ्ट में मुझे अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स मैं डाल दूं तो +12 से -6 हो जाएगा, which is +6, हो गया बैलेंस सभी चार्ज दोनों तरफ। हाँ सर। These are the steps. Next step क्या था,
सर अब Make the U2 number वाले of रिएक्शन को electrons 6 in से the मल्टीप्लाई कर। को बैलेंस करना है। इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम। यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो क्या करना है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को मैं पूरी इक्वेशन को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, सो द एंटायर इक्वेशन कैन बी मल्टीप्लाइड बाय 6, राइट। तो वही लिखा है 1 into 6 plus 2, 1 into 6 करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ऑक्सीडेशन हाफ में, और फिर उसको 2 के साथ ऐड कर दोगे तो ये मिल जाएगा आपका इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। So this is a fun answer. सर तो जो हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाले क्वेश्चन का लॉन्ग मेथड पढ़ा था वो यही था क्या? ये वही है, यस। It's called ion electron method. Okay, done. Fine. Copy कर लो थोड़ा। Next question. Balance the following reaction in basic medium using ion electron method. Copy karo question and then tell me what I should do one by one. I mean stepwise.
Yes. So what is the oxidation half here? CR का पहले में +3 है। हाँ, OH का -1 होगा तो Cr का +3 हो जाएगा, तो Cr is +3. ओके, देन सर फिर उधर RHS में +6 है, ओके, यस, तो मतलब सर वो ऑक्सीडाइज होगा। IO3 माइनस रिड्यूस हो रहा है। हाँ सर। करेक्ट. सो ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ पता चल गया. ओके, तो ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ पता चल गया. फाइन. What next? Read the steps and tell me. एटम्स को भी बैलेंस करना है कौन सा एटम्स को? सर, मतलब OH छोड़ के जो है, जो Yes. क्रोमियम I वाले, मतलब Okay. I Okay. Correct. तो वो already क्रोमियम एंड balanced आयोडीन को है। बैलेंस करना है, Already बट क्रोमियम balanced ऑलरेडी है। बैलेंस्ड है, आयोडीन भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है. फिर ऑक्सीजन का देखेंगे H2O ऐड करके। ओके, जहाँ नाउ पे एक्सेस है ऑक्सीजन वहाँ पे H2 ऐड करना है। ओके, तो मतलब पहले में RHS में H2 ऐड होगा, यस. तो दूसरे वाले में भी पहले पहले सब लोग थर्ड स्टेप को देखो और बताओ मुझे. थर्ड स्टेप को पहले पढ़ो कि ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस करने के लिए अभी यहाँ पे क्या करना है. तो जहाँ पे एक्सेस होगा वहाँ पे ऐड करेंगे तो RHS में. Yes. How many water molecules should I add on the RHS of oxidation half? 1 Yes. How one? देखिए One कि कैसा डिफरेंस आएगा? 4 और 3 के बीच में एक ही और H2 में एक है। 4. हाँ, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम्स है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम्स है. 4 - 3 is 1, मतलब एक ऑक्सीजन एटम ज्यादा है RHS पे. So we say this is the side having excess water, excess oxygen, and hence I will add 1 H2O on this side. Okay. 4 - 3, 1. 1 ऑक्सीजन एटम यहाँ पे ज्यादा है, एक्सेस है. कौन से साइड पे? राइट हैंड साइड पे. तो उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स में डालूंगा जितने से वो एक्सेस है. So 1 H2O I have added. Immediately I have to add OH minus ions on the other side of the reaction. Other side मतलब यहाँ पे. और कितना डालना है? Twice of जितना the water number डाला of water उतना molecules. Twice. So 2OH minus. ऐसा हो जाएगा. तो ये हो गया आपका स्टेप 3. ये हो गया आपका स्टेप 3. Same thing we will do in this case, that is reaction half. बताओ क्या करूँ यहाँ पे? 3H2O होगा और 6OH. 3H2O. राइट साइड में 6OH माइनस 6 3H2O यहाँ पे and 6OH minus. All right, next step. अब H+ बैलेंस करेंगे, H+ ऐड करके. Okay. H+ ऐड करना है हमेशा डेफिशिएंट के वाले साइड पे. Remember this. So 3H+ ऐड होगा. यहाँ पे 3H and 2, so 5 hydrogen atoms are there on the left hand side, right? यहाँ पे देखो 5 हाइड्रोजन एटम्स हैं. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं. 5 और 2 मतलब डेफिशिएंट क्या है इस तरफ. यहाँ पे I will add 3H+. इसमें देखते हैं अभी 6 हाइड्रोजन 6 7. यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, so we need not add it. All right. Okay. Next step. What is the next step? चार्ज बैलेंस. चार्जेस को बैलेंस करना है. तो पहले वाले में बैलेंस्ड नहीं -2 और उधर प्लस. यहाँ पे -2 है ना. -2 है. तो -1 है.
और यहाँ पे कितना है -2 + 3 विच इज +1। +1 +3 कैसे है, इसका +1 और 3, so 3 × +1 is +3। यहाँ पे 2 माइनस, so +3 - 2 = +1। और यहाँ पे -2, तो क्या करना चाहिए? राइट साइड में 3 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। एग्जैक्टली +1 - 3 कर दूंगा तो ही -2 आएगा। -3 का मतलब क्या है, मैं 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं यहाँ पे। हो गया चार्ज बैलेंस। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पे क्या करना चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे LHS में। यहाँ पे ऑलरेडी -1 चार्ज है और यहाँ पे -6 एंड -1 मिला के -7 हो गया चार्ज। -1 इधर और -7 उस तरफ, तो यहाँ पे मैं अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूं तो इस तरफ भी -7 हो गया, तो चार्जेस आर बैलेंस्ड। अभी ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना। ओके, तो यहाँ तक हो गया अपना। नेक्स्ट क्या है स्टेप? एक एलसीएम, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, एलसीएम लेना पड़ेगा 3 और 6 का। 3 और 6 का एलसीएम है 6। तो ऊपर वाले इक्वेशन को पूरे 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू 6 इन बोथ द हाफ रिएक्शंस, and then I can add the 2 half reactions. So this is what I'll do. 1 × 2 + 2 gives us this. ये आ जाएगा। फिर पहले आप इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से और फिर ऐड करोगे इक्वेशन 2 के साथ, तो ये मिलेगा। अब क्या करना है? फिर अब बस ऐड कर, एक साथ लिख देंगे पूरे को। नाउ सी, रिएक्शन वैसे हो गया लिख के, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है। सिंप्लीफिकेशन तो का हम मतलब क्या लोग होता है? एक साथ लिख के फिर हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, जो एक साइड पे दोनों सेम। नहीं, वो मत करना, इसलिए बोल रहा हूँ शुरुआत में क्या करना है। देखो, पहले सीधा ऐड करो जैसे मैंने ऐड किया यहाँ पे, तो ऐड करने के बाद देखना है कि क्या सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। अब उसमें भी एक रूल होता है। क्या कन्वेंशन है? कन्वेंशन ये होता है कि जहां H+ और OH- एक साथ दिखे उसको सीधा लिखना है H2। तो यहाँ पे 6H+ और 6OH- राइट हैंड साइड पे दिख रहे हैं, दोनों ही राइट हैंड साइड पे ही है। इसके लिए I can write 6H+ and 6OH- as 6H2O। तो ये पहले काम करना पड़ता है। आई एम रिपीटिंग दिस। कन्वेंशन के हिसाब से अगर H+ और OH- एक ही तरफ दिख जाए तो पहले उनको H2O में कन्वर्ट करना है। सो H+ और OH- मिला के क्या लिखना है? H2O। बट यहाँ पे 6H+ and 6OH- are there, and that is why I'm supposed to write 6H2O on the right hand side of the reaction. Okay, तो ऐसा हो जाए। Now you can do that what you were saying, जो कॉमन चीज है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अब क्या है? ऐसा है, और ये भी तो है। तो 6 और 2 मिला के 8H2O हो जाएगा राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर 3H2O पहले से ही था, so 8 - 3 मिला के 5, तो 5H2O राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, just like a mathematical equation in algebra, and that is their final balance equation. जो भी कॉमन चीजें हैं वो एक तरफ आ जाएंगे, लेकिन वो कब? वो तब करने हैं जब हम लोगों ने ऑलरेडी H+ और OH- को मिला के H2O कर दिया है। Don't do it before that. First you need to write H+ and OH- के बदले में H2O, and then you can transpose the common terms to one particular side of the equation. थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करें।
Okay, is it clear? Yes, sir. Okay, done. Done. हाँ सर ओके, तो ये था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। एसिडिक के लिए भी देखा हम लोगों ने, बेसिक के लिए भी देखा हम लोगों ने। नेक्स्ट मेथड, दिस इज द नेक्स्ट मेथड, oxidation number method. This is a bit shorter than the previous one, so I recommend that you stick to this method when you balance fractions. So start writing, then I'll explain. इसके अंदर भी दौड़ेंगे एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम, तो लिख लो पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का क्या है स्टेप्स।
थोड़ा सक्सेसफुल हो गया। तो थोड़ा सा ऊपर से। हाँ सर।
ओके डन, हो गया पूरा लिख के। ओके डन, this note is done. ओके क्वेश्चन कर लेते हैं, then we'll stop. Balance the following reaction in acidic medium using oxidation number method. मीडियम स्पेसिफाइड है, एसिडिक मीडियम बोला है, तो क्या है स्टेप्स? ऐसा पहला स्टेप ये होगा, क्या स्टेप है पहला? एन फैक्टर निकालना। तो एन फैक्टर निकाल लिया पहले। नेक्स्ट स्टेप क्या है? पुट एन फैक्टर ऑफ आर इन फ्रंट ऑफ ओ एन, पुट एन फैक्टर ऑफ ओ इन फ्रंट ऑफ आर। तो 5 जो आया है वो C2O4 2 माइनस के पहले डालना पड़ेगा, और 2 जो आया है वो MnO4 माइनस के पहले डालना पड़ेगा, यानी एक्सचेंज कर रहे हैं हम लोग इन फैक्टर्स को। तो ऐसा हो जाएगा, एक्सचेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 MnO4 माइनस प्लस 5 C2O4 2 माइनस गिविंग, ऐसा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या होगा? बैलेंस एटम्स एक्सेप्ट दोज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो मैंगनीज को बैलेंस करो यहाँ पे 2, और कार्बन को बैलेंस करो यहाँ पे 10। डन। फिर क्या नेक्स्ट स्टेप क्या था? सर हमने MnO माइनस में Mn का लिया ऑक्सीडेशन स्टेट, तो प्लस, हाँ प्लस 7 था ना यहाँ पे, और C2O4 2 माइनस में कार्बन का C2O4 लिया, कार्बन। इसका चेंज होता है फिर उसका लेते हैं ना। तो अभी हो गया तो यहाँ पे कार्बन का लिया तो 2 कैसे हुआ? 2 बिकॉज, हाँ सर समझा। ओके एन फैक्टर, तो इसको ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना नीचे वाले नंबर से। Okay, now we have balanced everything, all atoms except those of oxygen and hydrogen. So अभी next है ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो क्या करेंगे? एसिडिक मीडियम बोला है, तो 4 into 2 8 plus 20 28 ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे 20 ऑक्सीजन है। तो डेफिशिएंट कहाँ पे है? राइट हैंड साइड पे। तो वहां पे we will add 8 H2O, required number of water molecules to the side, deficient in oxygen. Now we have to balance hydrogen atoms by adding H plus ions to the side, deficient in hydrogen atoms. 16 H plus डाल देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे 5 और 2 16 था, वो स्विच हुआ समझा, लेकिन उसके बाद हमने 2 और 10 उसके हिसाब से डाला, राइट? हाँ 5 और 2 को हमने पहले स्विच करके लिखा और उसके बाद हमने एटम्स बैलेंस किए, इसलिए 2 और 10। हाँ यस स्टेप बाय स्टेप जाना है पूरा। फिर ऑक्सीजन को किया, फिर हाइड्रोजन को किया, खत्म हो गया बैलेंस। डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शंस होते हैं, उनका कैसे करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर। ओके सर। बिकॉज़ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जस्ट चालू किया, एक ही एग्जांपल लिया ना वो मैंने। ऑक्सीजन का बैलेंस करने वाला वापस ऑक्सीजन का यहाँ पे 20 और यहाँ पे 8, तो 28 ऑक्सीजन एटम्स थे लेफ्ट हैंड साइड पे, और यहाँ पे 10 2 20, सो 20 थे। तो मैंने इसके लिए 8 H2O डाल दिया। जितने से ऑक्सीजन डेफिशिएंट है उतने ही H2O मॉलिक्यूल्स डालने होते हैं टू द साइड हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। सो 8 हो गया H2O, तो 28 हो गया ना ऑक्सीजन अभी। राइट,
नाउ इज इट क्लियर? ऑक्सीजन एटम्स का बैलेंस हाँ करना सर, हाँ सर, समझा। और उसके बाद हाइड्रोजन करना है। कभी भी उल्टा मत करना कि हाइड्रोजन पहले किया और फिर ऑक्सीजन किया, ये मत करना। जो सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस में करना पड़ेगा।